Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As all we know, we have started prepositions. As I told you, every day I used to take one or two words of prepositions. Today I have taken above. What is the meaning of it, where to use it, and how to use it, and in how many ways we can use it. We are going to discuss over it. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। आप सबको मालूम है कि हमारी श्रृंखला चल रही है प्रपोजिशंस की, और ये भी मालूम है कि हर रोज़ मैं एक या दो वर्ड प्रपोजिशंस के लेती हूँ, जिससे आपको मैं डिस्कस करती हूँ, समझाती हूँ, आसान से आसान तरीके से आपको समझ आ जाए। और आज जो हम ले रहे हैं वो है अबव। ये एक अबव वर्ड है। इसको हम कितने तरीक़ों से, ये कैसे कैसे सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करें, और इसके क्या क्या हमें सही तरीका है यूज़ करने का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की सिंपल और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स बिगिन। टुडे द टॉपिक इज preposition use of above, how to use it, where to use it in a simple and easy way. So just we are going to start. First, higher than. What is the meaning of it? If we ask them what is the meaning of above, above means higher than, whatever it is, the level above, over it, higher, at the top. So we will say higher than. This is the first thing where we use it. The aeroplane was far above us, means the aeroplane is flying in the sky and it is very far from us. Above means higher than us, it is flying in the sky. So we will say the aeroplane was far above us. हाँ जी, हम आज शुरू कर रहे हैं प्रपोजिशन। जैसे बोला है कि हमारी श्रृंखला चल रही है, तो आज हमने जो वर्ड लिया है वो लिया है अबव। अबव का मीनिंग क्या होता है और कैसे कैसे हम इसे इस्तेमाल करते हैं, वो सिंपल इजी वे में बताने की कोशिश करूंगी। सो पहले सबसे सेंटेंस आता है हायर देन। इसका मीनिंग क्या है? ऊपर, हमारी हाइट से, हमारी ऊंचाई से ऊपर जो चीज़ उड़ रही हो उसको हायर कहते हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसका है द एरोप्लेन वॉज फार अबव अस। जो जहाज है, हवाई जहाज है, वो बहुत ऊपर है और हमारे से बहुत दूर है। फार मीन दूर, अबव मीन्स ऊपर, क्योंकि वो जहाज नीचे तो नहीं उड़ेंगे ना, वो ऊपर आसमान में उड़ते हैं, तो हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। ये हमने यहाँ लिखा है द एरोप्लेन वॉज फार अबव अस। जो जहाज है हमारे से बहुत दूर ऊपर है। दूसरा है बियॉन्ड द लेवल, हद से पार, जो जिसकी हद हो उसके पार हो। बियॉन्ड मैंने पार हो जाना, अपनी हद से बाहर, उसमें भी हम अबव यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? ही वॉज अबव सस्पिशियस ऑफ, सस्पिशियस में शक्की। कई को शक करने की बहुत आदत है, कहते हैं ये हद है, इसकी तो बहुत शक करने की आदत हम कहते हैं, तो उसमें आता है ही वॉज अबव सस्पिशियस ऑफ, और ये तो सबसे ज़्यादा शक्की दिमाग का इंसान है। अबव है, उससे भी ज़्यादा है, इसको शक बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है बियॉन्ड द लेवल, मीन्स देयर इज नो कंडीशन और देयर इज नो बाउंड्री। Beyond the boundary, what we talk about, it is beyond the level. So what if he was above suspicious of us, whether he is thinking bad of others, or he is thinking that it is going to happen or not happen. His mind is full of thoughts, not in a perfect mind. So we will say he was above suspicious, or he is always thinking more what he had to think, he thinks more over it. So we say he was above suspicious of all. Next, in reference to give someone, to tell about something, what they you want to do, and for that we give preference to, what we give the preference to which we give the preference. My duty is above my personal interest. Now here we have what I have written, that my duty is, what is this? Personal interest means we are enjoying, eating, roaming, whatever. I didn't give preference to that, but what to give? My duty. My duty is above my personal interest. Instead of thinking of myself, I think of my duty. So preference to, what I give preference to my duty. That's why I have written over there above. हाँ जी, अगला देखें, in reference to, किसी के बारे में बताना, तुलना करनी, जैसे कह लो वैसे। My duty is above my personal interest. Personal interest means हमारी अपनी खुद की ज़रूरतें हैं, जो हमारे अपने इच्छाएं हैं, खाना पीना घूमना, जो भी कह लो, हमारी जो इच्छा, हम उसको बाद में देखते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, पहला अपनी ड्यूटी, जो मेरा कर्तव्य है उसकी मैं पालना करती हूँ। मेरे अपने
जो है इंटरेस्ट है उससे ऊपर हमें इसको मानती हूँ अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, अपने काम को मानती हूँ। तो इसलिए है माई ड्यूटी इज अबव माई पर्सनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन है और हायर रैंक। हायर रैंक मीन्स पदवी जो होती है, जो इनके रैंक होते हैं, पुलिस में चले जाओ कहीं भी जाए, हर एक के अपने अपने औहदे होते हैं, तो उसके ऊपर जो रैंक है, जो ऊपर का रैंक है उसको कहते हैं इसको एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज अबव अ सेक्शन ऑफिसर। उसने क्या कहा, जो सेक्शन ऑफिसर होता है उससे ऊपर किसकी पदवी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की, तो यह ऑफिसर उससे ऊपर होने के कारण यहाँ पे हमने अबव लगा दिया। सो माई एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज अबव अ सेक्शन, और इसकी ये पोस्ट जो है छोटी होगी, उससे ऊपर पोस्ट वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया। नेक्स्ट वन है ऑफ हायर रैंक अकॉर्डिंग टू योर पोजीशंस, ranking, how your ranking is, whether it is in army, whether it's in navy, whether in an office, wherever they are, all over we use the ranks. So in that way also we use above, of higher rank. Now when we say something, when we are discussing with somebody, an administrative officer, what is an administrative officer, is above section officer. It means the section officer is not in the higher position, he is in the low position, and the higher position is administrator. Administrative officer is above section officer. We have to just say it, who is at the top rank. It means administrator is the top rank. Next one, beyond understanding of, when you did not understand anything, did not come to mind, it is not clear to you, say it is beyond my mind, what can I do? I can do nothing. So above, at that time also we use above. The difficult sum of mathematics was above her reach. Now what is it? I have given an example that mostly for the children maths is more difficult than other subjects. So that's why the difficult sum of mathematics, this difficult sum of mathematics is above her reach. She can't understand what the method of the mathematics is to how to solve it. She is not understanding it. So they say the difficult sum is above his reach. So she can't reach over there. She can't understand it. So they say above her reach. Next है beyond your understanding of. किसी को समझने से दूर हो जाए, जिस चीज़ को आप समझ ना सको। कई बार हम कहते हैं ना, मोस्टली हम क्या कहते हैं, मैथ में जो है, हिसाब में जो है, लोग कहते हैं कि ये तो मेरे समझ के बाहर है, दूर है मेरे से, तो उस पर भी हम अबव यूज करते हैं। सेंटेंस क्या बनाए, द डिफिकल्ट सम ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो सम है, ये जो सवाल है मैथमेटिक्स या हिसाब का, वो जो है उसकी पहुंच के बाहर है, उसकी समझ के बाहर है, वो समझ नहीं पा रही कि इसको मैंने कैसे करना है, तो उसमें भी मैथमेटिक्स अबव रीच, उसके समझने के दूर होने के वहाँ पे अबव डाल दिया। नेक्स्ट है मोर इम्पोर्टेंस देन, इसके अलावा हम किसी को ज़्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस महत्व देते हैं, उसमें भी हम अबव यूज करें। सुधीर प्लेस हिज कंट्री अबव हिज फैमिली टाइज। उन क्या है, सुधीर जो है अपने देश को ज़्यादा महानता देते हैं, उसको ज़्यादा इज्जत देता है, मानता देता है, अपनी फैमिली से ज़्यादा है। हम भी कहते हैं जब भी कहीं बाहर बातें होती है, क्रिकेट मैच हो, कोई मैच चल रहा हो, किसी भी देश का चल रहा हो, तो हम अपने देश के लिए सबसे पहले कहते हैं, उसमें हम अपने परिवार को भी भूले, इवन परिवार में भी आपस में तू मैं हो जा रही, नहीं, हमारा देश पहले है, बाद में दूसरों पे है, तो उसमें भी हम अपने देश को ऊपर रखते हैं। तो इसीलिए वो सुधीर का क्या है कि बाकी सब काम फैमिली टाइज में अपने रिश्ते नातों में से वो किसको ज़्यादा महत्व देता है, अपने देश को देता है, इसलिए हिज प्लेस अबव हिज फैमिली टाइज। नेक्स्ट वन है मोर इम्पोर्टेंस देन, टू गिव समथिंग इम्पोर्टेंस, everything what is more important for us, it is our motherland, not it is mother anything it will be, but in my sentence I have written Sudhir placed his country above his family ties. Instead of thinking of his family's relations and on, he say no, my country is at the top, it is the greatest country in the world, so above his country is talking, so say above his family ties. Even in the matches and then whenever there is matches going, we always say that India should win. So we give the importance to our country, not to the opposite countries we give it. We always give the first place to our country. So Sudhir also doing that, instead of the relations of his families and all, he give more importance to the country. So he say above his family ties. Now greater than in weight, price, age, temperature. Other than that, where we can use where is greater than, weight, price, the cost of his age and temperature. Wherever these words come, you have to use above even. So first sentence is the sack of flour is above 10 kilo. So I have written here weight. According to weight, what is it? This sack
This bundle of flow is 10 kilo. It means it is above 10 kilo, not 10 kilo, but above. It may be 11, it may be 12, whatever may say. So he is just saying that this sack of flour is above 10 kilograms. So this is a above weight we are talking. हाँ जी, उसके बाद है greater than in weight, price, age, temperature. इसके अलावा ये तो जब हमने शुरू की लिखी हैं, इसके अलावा जिसमें हम वेट हो, आपका वजन के हिसाब से, प्राइस मैंने कीमत के हिसाब से, एज आपकी उम्र के हिसाब से, टेम्परेचर मीन्स जो हमारे टेम्परेचर चलते हैं, गर्म सर्दी, ये जो टेम्परेचर है उनके हिसाब से भी जहाँ भी आएंगे तो हम वहाँ अबव लिखेंगे। तो पहला जो है वेट के हिसाब से मैंने बनाया, द सैक ऑफ फ्लोर इज अबव 10 किलोग्राम्स। ये मैंने वेट डाल दिया। वेट का मैंने क्या बनाया कि ये जो थैला है, आटे का जो थैला, इसमें में जो आटा है वो 10 किलो से ज़्यादा है। वो 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10.5 भी हो सकता है, 11, 15 भी हो सकता है। उसने क्या कहा, द सैक ऑफ फ्लोर इज अबव 10 किलोग्राम्स। इस थैले में 10 किलो से ज़्यादा गेहूँ है। तो ये वेट के हिसाब से जब भार के हिसाब से आएगा तो उसमें ऐसे उसमें भी अबव डालना है। इसके बाद है द प्राइस ऑफ दैट ओवरकोट इज अबव ₹2000। प्राइस कीमत के हिसाब से मैं क्या है, द प्राइस ऑफ दैट ओवरकोट जो लंबे लंबे कोट हम बताते हैं कि उस कोट का कीमत जो है अबव ₹2000, उसकी कीमत जो है 2000 से ज़्यादा है। हम जब भी जाते हैं दुकानों में चीज़ें ले रहे देखते हैं कौन से कम की रेट है, कौन से ज़्यादा है, हम कह रहे हैं नहीं भाई ये तो उससे भी ज़्यादा की कीमत है, तो उसमें हम अबव डाल देते हैं। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ दैट ओवरकोट इज अबव ₹2000। इट इज अकॉर्डिंग टू प्राइस। Price means the cost of the coat. Overcoat means the full length coat is above 2000. It costs more than 2000, not only 2000, but more than that. It we say above. Whether it is 2000, 2050, 2200, whatever may he says no. The cost is, what is the price of cost? It is above 2000. It is according to price. Where there is price, you will write above. Next one is the old man is above 80 according to age. Age, what we say? We say that man is about 70, above 80, above 90. Which according to age where they come, we also use above. That the old man is above 80 means he is more than 80 years old. That's why we say above 80. हाँ जी, अगला है the old man is above 80 age. एज के हिसाब से मीन उम्र के हिसाब से हम आम कहते थे 70 से ज़्यादा, ये 50 से ज़्यादा, ये 80 से ज़्यादा है। जो कोई भी उम्र हो सकती है, जो जिससे ज़्यादा हो गई, एक्चुअल नंबर ना दिया, कहते हैं ना 80 से ना लगभग 80 तो ऊपर ही है ये उम्र, 70 से ऊपर ही है इसकी उम्र, तो हम वहाँ में कहते हैं ओल्ड मैन इज अबव 80। वो जो आदमी है, बूढ़ा आदमी है, उसकी उम्र 80 से ज़्यादा है, जो उसमें उम्र के हिसाब से है, तब भी हमने अबव लगा दिया। नेक्स्ट है टुडेज टेम्परेचर सीम्स टू बी अबव नॉर्मल। अब टेम्परेचर मीन्स जो बाहर का टेम्परेचर, उसके आज का जो टेम्परेचर कहते हैं नॉर्मल जितना भी होता है उससे आज कुछ ज़्यादा लग रहा है। नॉर्मल से ज़्यादा होने के कारण हमने अबव डाल दिया। सो जहाँ टेम्परेचर वेट हो, प्राइस हो, एज हो, टेम्परेचर हो, इनके साथ भी सब जगह पे हमने अबव भी लगाना है। लास्ट वन इज टुडेज टेम्परेचर सीम्स टू बी अबव नॉर्मल। Temperature according to temperature, today is hot, today is cold, whatever it may be. So when the temperature is high, then we will say today's temperature seems to be higher than tomorrow, yesterday or day after yesterday. So thus we say it is above normal. What the normal temperature should be, it is not like that, but more than that. So we say above normal. So these are the words, these are the sentences where we use according to weight, price, age and temperature. According to that also we use above. Now these are the sentences what we have done according to where it can be used above and what is the meaning, how to use it, a simple and easy way. I have just go through it. I think that you have learned a new thing also. So ये है जो हमने sentences किया above के हिसाब से। आप लोगों को नई चीज़ भी समझ आई होगी, कुछ नया भी देखा होगा। पहले तो आपको समझ नहीं होगी किस कहाँ लगता है, तो अब आपका पैसे तो क्लियर ही नहीं हुआ होगा कि कहते किसको है, मगर अब आपको क्लियर भी हो गया होगा। वीडियो में समझ गए, नई चीज़ भी कुछ ना कुछ सीखी होगी इसमें, पुरानी जो आपके डाउट्स है वो भी क्लियर हो गए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको एंजॉय किया, कोई नई चीज़ सीखी, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
I think today what I have told you, I most of you didn't know the meaning of what is the meaning of above even. But now I think it is clear to you, and where to use it, how to use it in a simple way. I have told you. If you have enjoyed it, like it, then please like it, share it, comment it, and subscribe my channel. Thank you.